So in the last session, we saw how to project a satellite into orbit around Earth. तो टू स्टेज सिस्टम हमने यूज किया था. पहले स्टेज का काम ये था कि वो सैटेलाइट को डिजायर्ड हाइट तक लेके जाएगा. सैटेलाइट मतलब रॉकेट इन दिस केस. एंड देन पहला जो स्टेज है, इट गेट्स डिटैच्ड. देन द सैटेलाइट इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री. इफ यू रिमेंबर, if you do not remember, I will quickly recap. Very quick. So to launch a satellite into orbit around Earth, two-stage system is used. उसमें से एक स्टेज का, पहले स्टेज का काम ये होता है that the first stage what it does is ये सैटेलाइट को मतलब रॉकेट को एक डिजायर्ड हाइट तक ले जाता है. फिर जो पहला स्टेज होगा, it gets detached. फिर with the help of remote control you rotate it by 90 degree more or less. Okay, तो 90 डिग्री से रोटेट कर दिया. फिर जो सेकेंड स्टेज में फ्यूल होगा, उसका काम ये होता है टू गिव अ हॉरिजॉन्टल पुश, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू दिस सैटेलाइट. क्लियर है तक? ये जो वेलोसिटी हमने दिया था, इसको हमने बोला था VH, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. जितना वेलोसिटी हमने प्रोवाइड किया है, अगर उतने से इफ इट सेट्स इनटू सर्कुलर ऑर्बिट, तो हम इसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी. द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट at a height h from the surface of Earth such that it performs circular motion around Earth is called as critical or orbital velocity. हमने केसेस देखे थे. We saw अगर velocity of projection, horizontal velocity of projection अगर ये critical से कम हो, तो in that case what happens is, in that case the satellite, instead of setting into circular orbit, sets itself into elliptical orbit with the point of projection. मतलब जिस पॉइंट से आपने इसको पुश किया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, with the point of projection as apogee. तो apogee है तो it will come very close to the earth. When it comes close to the earth, it passes through atmosphere of the earth, and when the satellite passes through atmosphere of the earth, it experiences non-conservative forces like friction, and because of that it loses its energy. और एनर्जी लूज होने की वजह से ये क्या होता है, इसका ऑर्बिटल रेडियस कम होते जाएगा एंड देन इट फॉल्स डाउन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ये था पहला केस. तो इलिप्टिकल ऑर्बिट with point of projection as apogee. Number 2, if VH equal to VC, then the satellite performs circular motion. Path 2, ये circular motion था. Then if VH is greater than VC but less than VE, मतलब जो horizontal velocity of projection है, ये velocity greater than VC है but less than VE है, greater than critical but less than escape. तो इस केस में भी the path is elliptical but this time the point of projection is perigee, something like this. Okay, तो elliptical path में वो अर्थ के अराउंड मोशन परफॉर्म करता रहेगा. देन चौथा केस ये था, if velocity of projection is equal to escape velocity, then the satellite escapes via parabolic path, right? Then पांचवा केस था, if velocity of projection is greater than escape, then the satellite will escape, but it escapes via hyperbolic path. So it escapes via hyperbolic path. Hyperbolic path is little flattened compared to parabola. तो ये 5 केसेस देखे थे. फिर हमने इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी डिराइव किया था. एंड नाउ sorry for this, just a minute. Now what we will do is हम वापस से क्रिटिकल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिराइव कर लेंगे, बट दिस टाइम इन अ वे विथ आल्सो एडिंग लिटिल बिट ऑफ थ्योरी टू इट. तो एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, and the moment you hear this word critical velocity या फिर orbital velocity, इसका मतलब ये होता है satellite is performing circular motion around earth, right? So in any case, how to start writing is also important.
तो आपके पास ये अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल M लेंगे हम लोग, और रेडियस ऑफ अर्थ हम मान लेंगे कैपिटल R। सैटेलाइट जो है वो एक हाइट पे है, एट सम हाइट h मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड दिस सैटेलाइट इज परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन। और ये इतना डिस्टेंस जो है, दिस इज बेसिकली r प्लस h, एंड द मास ऑफ सैटेलाइट इज स्मॉल m। तो यू हैव टू स्टार्ट बाय फर्स्ट एक्सप्लेनिंग द सिस्टम। तो हमारे पास क्या है, एक सैटेलाइट है जिसका मास क्या है m, वो कहाँ पे है, एट हाइट h। कहाँ से मेजर किया, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सो कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m revolving around the earth in circular orbit, revolving around the earth in circular orbit, right, at height h, at height h from the surface of earth, from the surface of earth. The moment you say कि orbit circular है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी रिक्वायर्ड। और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ और सैटेलाइट में। सो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन is provided by gravitational force of attraction, gravitational force of attraction between earth and satellite, between earth and satellite. Therefore you will say centripetal force equal to gravitational force, equal to gravitational force. Obviously I expect कि आप सबको centripetal force का फॉर्मूला याद होगा ही। centripetal force is mv square by r। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, अभी तो सब समझ में आ जाता है, एग्जाम में लिखते वक्त तो छोटा एम की बड़ा एम। हु इज रिवॉल्विंग, सैटेलाइट। तो जो सर्कुलर ऑर्बिट में उसका मास होगा, अर्थ का मास नहीं हो सकता। अर्थ रिवॉल्व हो रहा है क्या, नहीं, तो रिवॉल्व कौन हो रहा है, सैटेलाइट, तो उसका मास आएगा यहाँ पे। गुड, क्योंकि आई हैव सीन दिस इन एग्जाम, ओह स्मॉल एम कैपिटल एम, नो 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 नो, सो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, राइट। अब जो जो चीजें आपने ऑलरेडी स्पेसिफाई नहीं की है उसको इसके बाद स्पेसिफाई कर लेंगे। पहले तो मास कैंसिल कर दो, यहां से दोनों साइड से एक आर और एक आर उड़ा दो, देन यू विल लेफ्ट विथ, ऑफ कोर्स यू हैव v स्क्वायर इक्वल टू gm बाय r। तो यहां से आपको मिल जाएगा देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल टू gm बाय r, एंड देयरफॉर v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm बाय r। एंड एज आई टोल्ड यू, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, हम अज्यूम करके चल रहे हैं, तो वेलोसिटी कौन सा होगा, क्रिटिकल vc। तो ये आएगा vc और ये भी हो जाएगा vc। अब जो जो आपने स्पेसिफाई नहीं किया वो कर दो, वेयर vc इज क्रिटिकल वेलोसिटी, m is mass of earth, small r is orbital radius। ये ऑर्बिट का रेडियस है, ये अर्थ का या सैटेलाइट का रेडियस नहीं है, इट इज ऑर्बिटल रेडियस, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। तो स्पेसिफाई कर देना चाहिए। नाउ therefore you can write down equation number 1 as, therefore equation 1 becomes vc equal to under root of
gm upon r plus h, equation number 2, right? Also if you remember, अगर आपको याद होगा, acceleration due to gravity g was gm upon r square, लेकिन ये था सरफेस का वैल्यू। क्यों सरफेस का वैल्यू? क्योंकि उस केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था? राइट एट द सरफेस, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या था? कैपिटल आर। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सैटेलाइट है, वो अर्थ के सरफेस पे है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे आप स्मॉल आर लिखोगे इंस्टेड ऑफ कैपिटल आर, तो यू राइट डाउन स्मॉल आर, और यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज आर प्लस एच का स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस एच। और ये वैल्यू कहाँ पे देख रहे हो आप? हाइट पे। तो जी एच इज gm upon r plus h का square. Therefore, from here you will get gh into r plus h square equal to gm, equation number 3. From equation number 2 and 3, from equation number 2 and 3, what you have is critical velocity equal to under root of gm, पर लेकिन gm क्या है? gm is gh into r plus h का square upon r plus h, cancel and cancel. So therefore you will get critical velocity vc equal to under root of gh r plus h का स्क्वायर था, कैंसिल हो गया, तो सिर्फ रह गया इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इट गिव्स यू एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। किसका क्रिटिकल वेलोसिटी? सैटेलाइट का। कहाँ पे? एट हाइट h। ओके, सो एक्सप्रेशन या इक्वेशंस 2 and 4, equations 2 and 4 gives critical velocity of the satellite at height h from the surface of earth, अब इसमें हम स्पेशल केस डिस्कस कर लेंगे, और मैंने कल बताया था स्पेशल केस क्या है। स्पेशल केस ये था कि h is very less than r, which implies कि r plus h is approximately equal to r. Also अगर आपको याद होगा कि gh, if you remember, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना तो कर लो, देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 भी है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज। तो what you should know is from equation 2, अगर ये स्पेशल केस यूज करोगे तो इक्वेशन 2 क्या बनेगा? therefore equation 2 becomes ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है vc, this is equal to under root of gm upon r plus h था, तो it becomes r, equation number 5. Also from equation number 4 में क्या था? vc equal to under root of gh और r plus h, but for h very less than r, you also have gh approximately equal to g. तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर हाइट कम रहा, किसका हाइट? सैटेलाइट का हाइट। अगर हाइट कम हो, मतलब सैटेलाइट ये अर्थ के सरफेस के बहुत पास में हो, तो gh की वैल्यू ये रफली g आती है। नहीं याद होगा तो वापस बताता हूं। तो इफ यू डू नॉट रिमेंबर, यू नीड टू स्टार्ट रिमेंबरिंग दिस 1 minus 2h by r, राइट? ये भी नहीं याद है तो कोई बात नहीं, जो याद है वो, ये नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो याद होगा ही है, ये याद है। हाँ, तो फिर आप बोल सकते हो एक काम करते हैं, इसको नीचे लेते हैं, राइट? इतना तो याद होगा, बट gh इक्वल टू, अब अप्रोक्सीमेटली नहीं लिख सकते हम, इक्वल टू बोल देंगे। gh इक्वल टू g r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, ये तो याद है पक्का। तो आप बोल सकते हो इफ
इफ यू हैव h वेरी वेरी लेस देन r, अगर h की वैल्यू बहुत छोटी है तो r प्लस h ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है r, सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर, therefore gh इक्वल टू g r अपॉन r प्लस h इज अगेन r, ये हो गया कैंसिल एंड कैंसिल, 1 का स्क्वायर कितना 1, therefore क्या मिल गया gh इक्वल टू g, राइट। अब आप बोल सकते हो therefore फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो द वे यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूलाज अगर भूल गए तो देन इट विल बी अ ट्रबल फॉर यू, ओके। तो भूल के चलेगा नहीं, हर एक इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। whatever we have done so far, everything you are supposed to remember, okay। तो आप क्या लिखोगे, therefore BC इक्वल टू क्या लिखोगे, GH की जगह पे क्या लिखोगे G, R प्लस S की जगह पे क्या लिखोगे R, तो क्या मिल गया GR। इक्वेशन नंबर 6। तो जो इक्वेशन 5 है और जो इक्वेशन 6 है, this is what the same thing, equation 5 and 6 gives critical velocity of the satellite at a height very, ऐसे बोल सकते हो, आप ऐसा भी बोल सकते हो, equation 5 and 6 gives critical velocity of satellite when it is very close to the surface of earth, okay। So equation number 5 and 6 gives critical velocity of satellite at a distance या फिर at a height या फिर at a position, at a location, बहुत सारे वर्ड्स है यूज करने के लिए, at a position very very close to the surface of earth। तो यहां तक हमने कल किया था, सिर्फ इस टॉपिक को प्रॉपरली लिखना बाकी था। तो कुछ नहीं है, हाउ डू यू राइट डाउन इज अ सिंपल थिंग, एक आपके पास सैटेलाइट है, हाइट h पे है, उसका मास m है, वो रिवॉल्व हो रहा है, ऑफ कोर्स सैटेलाइट बोला है तो अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व होगा क्योंकि सैटेलाइट तो अर्थ का है वो, राइट। तो इट इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो पहले एक्सप्लेन कर देना what is the situation। so you have a satellite of mass m revolving in circular orbit around earth, right, at height h from the surface of earth। so as you know that कि centripetal force is required, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रिपिटल फोर्स कंपलसरी होना चाहिए, नहीं तो सर्कुलर मोशन में वो रह नहीं सकता। तो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फिर दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करने के बाद यू विल गेट VC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GM बाय R, गुड, बट स्मॉल r इज R प्लस H। तो इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। ऑल्सो GH इज GM बाय R plus H का स्क्वायर, तो GM is GH R plus H का स्क्वायर। Put it in equation number 2, simplify, you get equation number 4। तो दो इक्वेशन मिल गए आपको क्रिटिकल वेलोसिटी की। हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 लगने वाला है, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि हाइट ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल, है ना। तो नॉर्मली इट इज एट सम अप्रिशिएबल हाइट, ओके। फिर देखेंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन, वी विल चेक। अगर बोल दिया कि 10 किलोमीटर हाइट पे है तो ये तो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इफ द हाइट इज ओनली 10 किलोमीटर, व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। तो उस केस में आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू सिंप्लीफाई इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 टू गेट एन इक्वेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। कब? जब सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत पास में है, बहुत पास में है, मतलब ये स्पेशल केस में आ गया R plus H is approximately equal to R and also GH equal to G। ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे, if you substitute this in equation number 2 तो सिर्फ H को छोड़ दो तो क्या बन गया, और इक्वेशन 4 देखोगे तो GH की जगह पे G लिख दो और R plus H की जगह पे R लिख दो, तो इक्वेशन नंबर 6, this is what you get। अब
यहाँ तक तो समझ में आया होगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो नेक्स्ट टॉपिक आई विल टेक विच इज कनेक्टेड टू दिस, विच इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि अभी कनेक्टेड ही हम देख ही रहे हैं। सैटेलाइट का हमने क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल लिया, तो अभी टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम पीरियड? टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, व्हाट इज टाइम पीरियड? The time taken by the satellite to complete one revolution around the earth is nothing but time period. तो पहले टाइम पीरियड डिफाइन कर लेते हैं। मतलब इन शॉर्ट, एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? हाउ मच इज द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन राउंड, राइट? दैट इज टाइम पीरियड। द टाइम टेकन by the satellite to complete one revolution around the earth is known as time period. फाइन, यहां तक क्लियर? पहले डिफाइन कर दो, द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, क्योंकि रिवोल्यूशन है वो रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट नहीं हो रहा है वो। ओके, तो सैटेलाइट इज नॉट रोटेटिंग, इट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इट इज अनलाइक मून। मून इज नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट रोटेट भी होता है। इंटरेस्टिंगली, मून जैसे अर्थ रिवॉल्व भी हो रहा है अराउंड सन, और अर्थ रोटेट भी हो रहा है। तो मून का भी वही केस है, मून रोटेट भी होता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और वो रिवॉल्व भी होता है अराउंड सन। लेकिन हम तो मून का एक ही साइड देखते हैं, यू नो, यू ओनली सी वन साइड ऑफ द मून। व्हाई? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइडल लॉकिंग। व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ? 27.3 days। तो जितने टाइम में वो अर्थ का एक चक्कर लगाता है, उतने ही टाइम में वो एक बार रोटेट भी होता है। सो पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून एंड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ मून इज द सेम, इज कॉल्ड एज टाइडल लॉकिंग। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उसको लॉक करके रखा है बेसिकली। तो हमको एक ही साइड दिखता है, यू ऑलवेज सी ओनली वन फेस, दूसरा फेस आपको दिखेगा नहीं, राइट? तो दिस इज व्हाट हैपेंस। बट ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात चल रही है यहाँ पे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हमने लॉक किया, मतलब हम उसको रोटेशन में सेट ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको रिवोल्यूशन में सेट कर रहे हैं ना। कहीं पे देखा था टू स्टेज सिस्टम में कि हमने और थर्ड स्टेज लगा दिया, और वी आर बेसिकली मेकिंग इट रोटेट। हमारे यूज का नहीं रहेगा अगर रोटेट होगा तो एनीवेज, तो पहले तो इतना। अब आपको क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड। फिर वापस से सेम स्टोरी, यू हैव टू एक्सप्लेन द सिचुएशन। तो यू हैव टू स्टार्ट बाय सेइंग कंसीडर व्हाट? कंसीडर a satellite of mass m, क्या कर रहा है ये? इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, मतलब इट इज बेसिकली इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ। इतना सिचुएशन आपको बताना पड़ेगा, और आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल रेडियस इज स्मॉल r। तो कंसीडर a satellite of mass m orbiting round the earth in circular orbit with orbital radius small r। वो r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R प्लस h है, वो बाद में देखेंगे। इतना तो पता, पहले इतना इंफॉर्मेशन बता दो। क्या फाइंड करना था? टाइम पीरियड। देयर इज समथिंग व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज सर्कुलर ऑर्बिट। मतलब सैटेलाइट के पास वेलोसिटी कितना है? क्रिटिकल। एक्सेलेंट। देखो, ऑलवेज रिमेंबर, ये चीजें हमेशा याद रखो कि ये जो सीक्वेंस होता है ना टॉपिक्स का, वो सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट होता है। टॉपिक
टॉपिक टू टॉपिक जो सीक्वेंस होता है दैट लिंक इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने पहले अगर क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव नहीं किया होता तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन मिलेगा ही नहीं आपको। व्हाई? बिकॉज द मोमेंट यू से हियर सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्क्यूलर ये वर्ड जैसे आया मतलब वेलोसिटी पजेस्ड बाय द सैटेलाइट इज क्रिटिकल, और क्रिटिकल का इक्वेशन पता है मतलब उसका यूज कर सकते हैं, राइट? तो दस आप बोल सकते हो since the orbit is circular, since the orbit is circular, velocity of the satellite is critical velocity, and therefore Vc equal to under root of gm by r, इक्वेशन नंबर 1। अब डिराइव नहीं करते बैठेंगे, कर लिया ना डिराइव, कितनी बार डिराइव करेंगे? किया था क्या डिराइव हमने? कहां डिराइव किया था? ये इक्वेशन नंबर 1, राइट? तो ये यूज करना है। अब also we know that do you know velocity is distance upon time, and therefore you see velocity is distance upon time, therefore critical velocity equal to distance is एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया किसने? सैटेलाइट ने। तो कितना कवर किया 2 pi r circumference, therefore critical velocity equal to circumference of the circular orbit, basically of the circular orbit divided by capital T क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया ये जो टाइम पीरियड है दैट इज द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, और इसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए एक लेटर रिजर्व्ड है, दैट लेटर इज नथिंग बट कैपिटल T। स्मॉल t मतलब एनी टाइम इंस्टेंट। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि 1 घंटे के बाद कहां था, ये भी बोल सकता हूं कि 2 घंटे के बाद सैटेलाइट कहां था। लेकिन जब मैंने कैपिटल T लिखा तो कैपिटल T का मतलब ये होता है कि एक चक्कर पूरा हो गया, राइट? आप कैसे फिजिक्स से पीरियड के लिए बराबर 2:15 बजे आते हो हर दिन? क्यों? क्योंकि आपका एक पीरियड खत्म होने के बाद अगला पीरियड कब होगा? वापस से नेक्स्ट दिन, राइट? तो द टाइम पीरियड ऑफ यू कमिंग हियर इज 23 आवर्स, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो 23 आवर्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2:15 से 3:15 बैठोगे, फिर 3:15 बजे जाओगे, अगले दिन वापस आओगे। तो योर टाइम पीरियड ऑफ कमिंग हियर इज 23 आवर्स एंड नॉट 24 आवर्स। तो 23 आवर्स, तो ये पता होना चाहिए। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा दैट इज कैपिटल T, और स्मॉल t मतलब एनी टाइम इंस्टेंट। तो यहाँ पे यू शुड नो, जब भी मैं लिखूंगा कैपिटल T मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम पीरियड, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम पीरियड, time period. Therefore, critical velocity Vc is circumference of the orbit, which is 2 pi r upon time period is T. Equation number 2. अब इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है। Therefore, from equation number 1 and 2, you have under root of gm by r equal to 2 pi r by t, right? हमें क्या चाहिए था? टाइम पीरियड। वेरी गुड। तो therefore t को यहां लाओ और इसको वहां ले जाओगे तो डिनोमिनेटर का बन जाएगा न्यूमरेटर का बन जाएगा डिनोमिनेटर, अंडर रूट ऑफ r बाय gm, और ये 2 पाई r ऑलरेडी बाहर है। अब ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 2 पाई है इसको पहले लिख देंगे, ये जो r है इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो r स्क्वायर करके ले जाएंगे, और ऑलरेडी अंदर एक r था तो r क्यूब बन जाएगा। r अंदर गया तो स्क्वायर बन के जाएगा, और ऑलरेडी अंदर r था तो r क्यूब बाय
जी। ये इक्वेशन नंबर 3, ये टाइम पीरियड का इक्वेशन आपको मिल गया। तो इक्वेशन 3 इज इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड। अलग अलग फॉर्म होते हैं, देखेंगे बाद में। ओके, वी विल सी अनदर फॉर्म्स आल्सो, बट वेट अ मिनट, वी हैव टू get some important conclusions from here. If you remember Kepler's third law, क्या था Kepler's third law? Square of time period of any planet around sun is directly proportional to cube of semi major axis. वहां पे सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि वहां पे ऑर्बिट इलिप्टिकल थे, यहाँ पे ऑर्बिट सर्कुलर है। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि एक साइड पे स्क्वायर करके चलेगा नहीं, इट इज नॉट फिजिकली करेक्ट, तो यू हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, रूट गया और ये नीचे रह गया gm और ये बन गया r क्यूब। करेक्ट, ये याद रखना, ये हम एक एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जहां पे ये इक्वेशन लगने वाला है हमको, राइट। अब आपको पता है कि 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो यू कैन से देयरफॉर t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब सिंस 4 पाई स्क्वायर gm ये सारा का सारा था कांस्टेंट, right? Therefore what you can say, therefore square of time period, square of period of satellite around earth is directly proportional to cube of its orbital radius, cube of its orbital radius. So it is similar to Kepler's third law. Similar, not the same, but similar. क्यों? क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्लैनेट के केस में आपको ऑलरेडी पता है, आपको क्या पता है कि प्लैनेट के केस में ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होता, यहाँ पे ऑर्बिट सर्कुलर है, तो इट इज सिमिलर बट नॉट द सेम। यहाँ तक क्लियर? अब ये जो इक्वेशन 3 है, यहाँ पे स्मॉल r था कैपिटल R प्लस h, तो इक्वेशन 3 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज क्या था, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ स्मॉल r, तो स्मॉल r की जगह पे r प्लस h का क्यूब अपॉन gm, इक्वेशन नंबर 4, राइट। दिस इज व्हाट यू नो। अब इसको और चेंज कर सकते हो, ऑलरेडी हमको पता है। also what you know is gh is gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, therefore gm इक्वल टू gh r प्लस h का स्क्वायर, therefore ये इक्वेशन नंबर 4 becomes, इक्वेशन नंबर 4 में आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अपॉन इनटू अंडर रूट ऑफ r प्लस h का क्यूब अपॉन gh r प्लस h का स्क्वायर, कैंसल, तो टाइम पीरियड t इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ r प्लस h अपॉन gh। कौन सा बाकी रह गया, इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं इसको, 5। तो ये जो इक्वेशन है, अब देखो बुक टू बुक वेरी करता है, कुछ बुक्स में बेसिकली r प्लस h की जगह पे स्मॉल r लिखा होता है, एक ही बात है, इट्स नॉट डिफरेंट, दे आर सेम, तो दे विल राइट लाइक दिस, इक्वेशन नंबर 6, एक इज द सेम थिंग, इट्स नॉट डिफरेंट एट ऑल। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 था, ये जो इक्वेशन नंबर 4 था, ये जो इक्वेशन नंबर 5 और 6 है, ये सारे के सारे एक ही चीज है, क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, कहां पे, अराउंड द अर्थ, कहां पे, एट अ हाइट h। सो इक्वेशंस कहां से स्टार्ट हुए, 3 से कहां तक खत्म हुए, 6 तक, 3 to 6 gives expression for
expression for time period of satellite orbiting in circular orbit कहां पे? around the earth at a height h. So gives expression for time period of satellite orbiting in circular orbit around the earth at height h. जैसे हमने पिछले टॉपिक में स्पेशल केस देखा था, अभी भी स्पेशल केस होगा, वही सेम तो सेम थिंग स्पेशल केस. तो स्पेशल केस यहाँ पे वही है, if height is very less than r, then you have r plus h approximately equal to capital R, and therefore what you will get is, therefore time period का जो इक्वेशन होगा, therefore time period t from where you can start is, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4 से. ओके, सो इक्वेशन नंबर 4 आपका बन जाएगा 2 पाई r प्लस h के ऊपर लिखोगे सिर्फ r, तो ये बन जाएगा आपका 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब, क्योंकि ये r प्लस h इज r अपॉन gm, राइट. और टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई, ये जो यहाँ पे आपने लिख के रखा है इक्वेशन 5 से, r प्लस h विल बी r और gh विल बी g, राइट. तो इट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाय g. तो ये जो इक्वेशन है 7, तो ये जो इक्वेशन 7 है, बोथ ऑफ देम गिव यू एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट orbiting very close to the surface of earth. So equation 7 gives time period, इसका टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या कर रहा है ये? ऑर्बिटिंग द अर्थ इन सर्कुलर orbit very close to the surface of earth, ये आ गए आपके नेसेसरी इक्वेशंस. गुड. तो as I told you, physics is nothing. One trigger point. एक बार आपको समझ में आया क्या करना है, तो मैं बताता हूँ कि कैसे. You have to make a brain map. ओके, वेरी सिंपल. यू नीड टू कीप इन माइंड कि क्या करना था. हमें चाहिए था टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन. टाइम पीरियड मतलब एक राउंड कंप्लीट करने में सैटेलाइट को कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड. और क्योंकि ये सैटेलाइट है जो हमने लॉन्च की है, हम नॉर्मली जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हम सर्कुलर ऑर्बिट में रखते हैं. मतलब सर्कुलर ऑर्बिट, ये वर्ड सुनते से ही क्रिटिकल वेलोसिटी है सैटेलाइट का, ये पता होना चाहिए. सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. हमेशा याद रखो, जो इंफॉर्मेशन है वहीं से स्टार्ट करना. क्या इंफॉर्मेशन है? हमारे पास सैटेलाइट है, वो कहाँ पे है? हाइट h पे है. क्या कर रहा है? ऑर्बिट. इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट. द मोमेंट यू लिसन टू दिस वर्ड सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी होगा. मतलब स्टार्ट तो यहां से कर ही सकते. vc इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm बाय स्मॉल r. वाई स्मॉल r? बिकॉज ये satellite is at height h from the surface of earth, तो small r लिखना पड़ेगा. देन इतना आपको पता है. और फिर आपको पता है वेलोसिटी का डेफिनेशन, डिस्टेंस अपॉन टाइम. एक चक्कर में कितना डिस्टेंस? 2 पाई r. एक चक्कर में टाइम कितना? टाइम पीरियड. क्रिटिकल वेलोसिटी vc. इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा. तो you will write down gm by small r equal to 2 pi r by t, इक्वेशन नंबर 3. फिर यहां से t इक्वल टू, ये 2 pi r है और यहाँ पे ये आ गया r by gm. इस r को अंदर लेके जाओगे तो r क्यूब कर दोगे, क्योंकि r स्क्वायर और r मतलब r क्यूब by gm. यहां तक आ गया. ये आपको मिल गया एक इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड, राइट. अब
अब आपको सिर्फ ये शो करना था कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो इसका स्क्वायर कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम रूट के बाहर आ गया, आर क्यूब भी रूट के बाहर आ गया, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्योंकि 4 पाई जी और एम ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स है, दैट इज वाई। अब इसके बाद हमको लिखना है इन टर्म्स ऑफ आर रेडियस ऑफ अर्थ एंड हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सिर्फ आप क्या करोगे, आप सिर्फ इतना ही करोगे कि यहाँ पे जो स्मॉल आर है उसको आप लिखोगे आर प्लस एच का क्यूब अपॉन जी एम, करेक्ट। ये आपको एक और एक्सप्रेशन मिल गया टाइम पीरियड का, राइट। नाउ इफ यू वांट यू कैन आल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मे बी नोट्स में मैंने शायद लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, आई डोंट नो, बट इट्स ओके बिकॉज हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो सब्स्टिट्यूट करते जाओ। सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बोलोगे आप, यू हैव जी एच इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, तो जी एम इक्वल टू जी एच आर प्लस एच का स्क्वायर, put it in equation number 5, time period is 2 pi under root of r plus h का cube upon gh, r plus h का square cancel and cancel. So you will have this as time period equal to 2 pi under root of r plus h upon gh, right? बराबर ना, कुछ ऊपर नीचे नहीं है, वो प्रॉपर है। दिस इज व्हाट यू विल हैव। देन ये इक्वेशन नंबर 6 आपको मिल गया। अब सिर्फ इतना ही है कि अगर सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के पास में होता तो फिर इस केस में ये जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आपने लिखा है 5 नंबर, ये बन जाता 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच की जगह पे सिर्फ आर क्यूब बाय जी एच, और ये जो इक्वेशन नंबर 6 है ये बन जाता t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाई जी। ये नहीं भी याद रहा तो फिर और नया तरीका, बट g is equal to gm by r square, therefore gm equal to gr square, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r का क्यूब, gm is gr square, कैंसल एंड कैंसल। तो ऐसा भी लिख सकते हो इफ यू वांट, तो ऐसा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज हाउ यू विल गेट एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। So we'll move ahead to next topic, and that is very interesting, weightlessness. So you should know when and how you can feel weightlessness. You can feel that you have lost all your weight, or if you want to feel as if earth is not there to exert a gravitational force on you, है ना। अगर आपको weightlessness एक्सपीरियंस करना है तो दो तरीके हैं, एक है with risking your life ना, 100 फ्लोर पे जाओ, लिफ्ट के अंदर खड़े हो जाओ और लिफ्ट का केबल किसी को काटने के लिए लगा दो, फ्री फॉल, बट देन वो लाइफ में एक ही बार एक्सपीरियंस मिलेगा, दैट इज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, बिकॉज देन देयर इज नो लाइफ, बट देयर अदर वे अराउंड विदाउट रिस्किंग योर लाइफ। सो वेटलेसनेस, तो वेटलेसनेस ये दो तरीके से हो सकता है। एक इन अ सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट तो आर्टिफिशियल है, तो सैटेलाइट में तो हम ह्यूमन भी जा ही सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज अर्थ एंड देन यू हैव अ सैटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, लेट अस से ये यहाँ पे यू हैव अ सैटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग अर्थ। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा, आई हैव टू इंक्रीज साइज लिटिल बिट so that you understand this is satellite, okay, this is not any unidentified flying object, this is not a UFO, okay, this is a satellite, right, this is a satellite,
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये सैटेलाइट है, नहीं तो बोलोगे कि वी हैव सीन अ यूएफओ, इट इज अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यू शुड नो, तो मैं साथ में लिखते भी जाता हूँ, कंसिडर अ सैटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ with some orbital radius small r. Okay, so consider a satellite orbiting the earth, orbiting the earth in circular orbit, in circular orbit of orbital radius r, of orbital radius r. हमको फील करना है वेटलेसनेस, सैटेलाइट को नहीं, लेकिन सैटेलाइट जब ऑर्बिट में होगा तो इट विल एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज डाउनवर्ड्स। तो वो पहले बता दो, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट, क्योंकि डाउनवर्ड ही होगा ना, व्हाई, बिकॉज ग्रेविटी इज डाउनवर्ड्स, सो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट is given by a equal to gm by small r square। अभी देखा ना हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, अभी तो लिखा कि नहीं, यहाँ पे यू हैव रिटन इट समवेयर जस्ट नाउ, ये देखो, ये gh इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, बट r प्लस h इज स्मॉल r, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया स्मॉल r। और a क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, एक सैटेलाइट है और एक सैटेलाइट के अंदर हम लोग हैं। हाँ, तो उसके लिए फिर मुझे जी यूज करना पड़ेगा, तो नॉट टू गेट कंफ्यूज विद, ये एक्सेलरेशन किसका है, सैटेलाइट का। तो अब बोलेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट इज इनसाइड, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इनसाइड दिस सैटेलाइट, is inside this satellite, it experiences, अब जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा, लेट मी शो एन ऑब्जेक्ट इनसाइड दिस, एक ऑब्जेक्ट बता देता हूं मैं, लेट मी शो एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर। तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, सो इमेजिन यू हैव एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर, सैटेलाइट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लगने वाले हैं। कौन से दो फोर्सेस, ऑफ कोर्स वन फोर्स इज डाउनवर्ड्स व्हिच इज ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड वन फोर्स इज अपवर्ड्स व्हिच इज नॉर्मल रिएक्शन। क्यों, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो सैटेलाइट के फ्लोर पे रखा होगा, जैसे आप लोग इस क्लासरूम में बैठे हो, यू आर let us say you're standing on the floor, your weight is action on the floor and floor exerts reaction। good, तो अब लिखने का काम हम बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं इसको। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पे है, ऑब्जेक्ट पे है, और ऑब्जेक्ट का मास, मैंने यहाँ पे सैटेलाइट के मास को कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है, तो मैं ऑब्जेक्ट के मास को ले लेता हूं m, स्मॉल m, राइट, ओके, और अर्थ के मास को कैपिटल M। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट पे Fg, कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m बाय r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट सैटेलाइट के अंदर है, तो जितना डिस्टेंस सेंटर से सैटेलाइट का है उतना ही ऑब्जेक्ट से अर्थ के सेंटर का है। क्लियर, अगर मैं एक सैटेलाइट में हूं तो सैटेलाइट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से और मेरा डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से सेम है। गुड, क्लियर यहां तक। दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन n which is always upwards, करेक्ट। तो ये है डाउनवर्ड फोर्स, ये है अपवर्ड फोर्स। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज गिवन बाय, नेट डाउनवर्ड फोर्स किस पे, ऑब्जेक्ट पे, सैटेलाइट पे नहीं, सैटेलाइट पे एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशन, उस पे कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, उस पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स।
ऑब्जेक्ट पे दो है, कौन से दो? ग्रेविटेशन और नॉर्मल रिएक्शन। तो नेट डाउनवर्ड कैसे निकालते हो? डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, ऐसे ही करते हो ना, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स। और आपको याद होगा, स्पेशली जिन्होंने जेई नीट का कोर्स लिया हमको पता होगा, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, नेट फोर्स को क्या लिखते हो? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि व्हाट इज फोर्स? ma। किसका m? किसका m? मेरा m, ऑब्जेक्ट का m, राइट? क्योंकि वेटलेस मुझे फील करना है, सैटेलाइट को नहीं, राइट? तो ma, लेकिन a किसका? a किसका? सैटेलाइट का। a सैटेलाइट का होगा तो बोलेगा मेरा a। अरे आपका a मतलब सैटेलाइट का a, बिकॉज यू आर इनसाइड सैटेलाइट। वेरी गुड। तो व्हाट इज fg? g capital M small m by r square minus n m. What is a? Do you remember a? g capital M। ओके, तो n को वहां शिफ्ट कर देते हैं, तो g कैपिटल M स्मॉल m by r स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m by r स्क्वायर। ये तो हो गया 0, करेक्ट? तो वेटलेसनेस मतलब क्या? नॉर्मल रिएक्शन इज 0। When is normal reaction 0? When you are not in contact with the surface of the satellite। मतलब आप हवा में उड़ने लगोगे। हवा तो है नहीं उधर, वैसे बीइंग ऑन अर्थ आल्सो बहुत लोग हवा में उड़ते हैं। वो हवा में उड़ना अलग है, ये अलग है। ये है दैट यू लूज कांटेक्ट विद द सरफेस, वो मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0 होना। तो you can feel without risking your life weightlessness if you are in an orbiting satellite, correct? तो ये टॉपिक हम कल वापस से एक बार रिपीट करेंगे। So that's it for today.